देश की सबसे बड़ी पंचायत है और संसद का अर्थ है कि हम वहाँ पर बैठ कर के देश के लोगों के लिए योजनाएं बनाए हैं, समस्याएं तो उनका समाधान करें और ये सब चर्चा के माध्यम से ही संसद में होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद का ये सत्र बेहद कारगर सिद्ध होगा और विपक्ष पहले की तरह नहीं, लेकिन इस बार विपक्ष सहयोग करेगा सदन को चलाने में और उससे हम बहुत सारे विधायी काम और जो चर्चाएं हैं मुद्दों पर वो हम कर सकेंगे। सर, पार्लियामेंट या फिर किरण रिजिजू का बयान आ रहा है कि वैसे तो सारी पार्टियां समर्थन कर रही है, लेकिन कुछ एमपी है जिन्होंने कहा है कि वो रकस यानी विग में डाल सकते हैं प्रोसेस। देखिए, ये तो विषय वहाँ पर कोई उठाएगा तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष उसके लिए एम्पावर्ड हैं उस विषय पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि संसद सर्वोपरि है। सदन में चर्चा हो, हर विषय पर चर्चा हो और सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं हटी है। चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, लॉजिकल चर्चा हो तो उससे देश को भी फायदा होगा और जो करोड़ों लोग संसद देखते हैं उनके मन में भी संसद के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न होगी। सर, विपक्ष खासकर टीएमसी कह रही है कि उनका मेन मुद्दा इस पर। देखिए, टीएमसी हार के डर से अभी से भूमिका बना रहा है। टीएमसी को मालूम है कि बिहार की हवा बंगाल पहुंच गई है। बंगाल में भी इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। टीएमसी का जंगल राज है, उसे खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाना चाहती है। उनके वोट पर उनको बहुत घमंड और अहंकार है और एसआईआर जब लागू होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का तो नाम उसमें दर्ज नहीं होगा। इसलिए वो हताश, निराश, परेशान है और वो बंगाल में तो हंगामा कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग के दर पर जाकर वहां पर उनसे मिलकर बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ बयान देना कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब पार्लियामेंट में भी किस तरह हंगामा बर्पा किया जाए और बंगाल के चुनाव की हार का जो ठीकरा है अभी से कैसे फोड़ा जाए चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर, इसके लिए वो संसद में व्यवधान पैदा करेंगे। टीएमसी सिर्फ व्यवधान वाली पार्टी हो गई है, उसमें और कांग्रेस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना व्यवधान पैदा करता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की going to raise the SAR issue, and also still SAR is going on. The SAR process is going in West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala. So the number of BLOs suicide in these days, even the Kerala and also West Bengal, even UP also. Many of the BLOs, because of the pressure of election commission and also over workload, so the mental tension and torturing by the election commission officials, that's why number of BLOs suicides, and this is a very serious issue that government is not ready to discuss in the SAR the previous session also. This session also, SAR is also one of the most important issue. We are going to take up this SAR issue in the House. We already given a notice to the adjournment motion, and 10 o'clock LOP, leader of opposition, Rajya Sabha, Mr. Mallikarjun Kharge convened a opposition parties meeting. That meeting we have taken final decision. Kiran Rijiju is saying we are ready to discuss and we are ready to listen to the opposition, but there is a method. No, we are also ready to cooperate with the government. We are also ready to cooperate with the smooth running of the House. But at the same time, government is only giving priority to their business. At the same time, whatever opposition is saying, whatever opposition is bringing to the House, that issue is not ready to discuss in the House. That is the problem. If government will ready to discuss the issues which are raising the opposition parties, there is no any problem. So the government said they are saying that we are ready to discuss any issue in the House, but at the same time we have whatever the burning issue, important issue we are raising the House, they are not ready to discuss. This is the problem.
Sonia Gandhi, Rahul Gandhi getting trouble by the national hierarchy on the national hierarchy. Sir, how do you see this? No, that is national herald issue. Everybody knows that's a false allegation and also it's politically motivated, and everybody knows that. But the ED was questioned by Sonia ji and Rahul ji hours and hours. But this totally political vendetta. Then we are politically and legally we are facing this issue. One last question, sir. Why Shashi Tharoor is not attending? को लेके हम तो सुनना चाहते हैं कि ऑपोजिशन क्या कहना चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट सबकी है। हमें वो भाषण न दे। पूरे देश ने पिछली बार देखा है, अगर ये संसद सबकी है तो विपक्ष लगातार हर रोज सिर्फ एक ही मांग तो कर रहा था कि SIR पर चर्चा हो जाए, किसी रूप में हो जाए, किसी स्वरूप में हो जाए। देश में अगर आजादी है, लोकतंत्र है और संविधान है तो देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए ना। संविधान में जिस तरीके से, एक उदाहरण काफी है, इतने BLO जो उस काम में लगाए गए हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हो तो बात तो फिर असहनशीलता की है। और कोई भी संवेदनशील सरकार होगी, संविधान को मानने वाली सरकार होगी तो चर्चा के लिए ही तो संसद है। चर्चा करें, क्या वो स्वीकार करें क्या न करें, बहुमत उनका है, फैसला वो होगा। पर देश जाने भी ना सारी सच्चाई, हम चर्चा भी ना करें तो फिर संसद में हम बैठने जाते हैं या बैठकर चर्चा करने जाते हैं, और अगर हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो फिर संसद की उपयोगिता क्या। आज का प्रश्न मेरा रहेगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम क्रिमिनल। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें